student, today I am going to start science. Last day I told about food from animals and today I am going to start food habits of animals. I hope you all purchase your science books, open your books and attention about this topic. First I suggest you all, if I give any homework, so you complete your homework and show me. Okay student, listen to carefully. Food habits of animals, it means जानवरों की खाद्य आदतें. Different animals have different feeding habits. अलग अलग जानवरों के खाने की अलग अलग आदतें होती हैं. Based on their feeding habits, animals can be divided into three groups. उनके भोजन की आदतों के आधार पर जानवरों को 3 समूहों में विभाजित किया जा सकता है. Number 1, herbivores. Herbivores means शाकाहारी. Herbivores, heavy plants for eater, are those animals which eat only plants and plants products. Cow, horse, elephants, sheep, squirrel, etc. are some herbivores. शाकाहारी जैसे हर्बी, पौधा, वोर, खाने वाला. ये वे जानवर हैं जो केवल पौधों और पौधों के उत्पाद को खाते हैं, जैसे गाय, घोड़ा, हाथी, भेड़, गिलहरी आदि कुछ शाकाहारी हैं. See here, cow, horse, elephant. This is a herbivores. And next, carnivores. It means मांसाहारी. Carnivores, carne, meat, वो eater, are those animals which eat only flesh of other animals. Lion, tiger, eagle, vulture, etc. are some carnivores. Carnivores means होता है मांसाहारी. मांसाहारी जैसे कि कार्नी, मांस, वोर या खाने वाला. ये वे जानवर हैं जो केवल अन्य जानवरों का मांस खाते हैं, जैसे शेर, बाघ, चील, गिद्ध आदि कुछ मांसाहारी हैं. And next topic, now see here, carnivorous animals, lion, tiger, eagle and vulture. And next topic, omnivore. Omnivores means सर्वभक्षी या सर्वाहारी. Omnivores like only all wore eater are those animals that eat both plants and flesh of other animals. Bear, crow, dog, human beings, etc. are some omnivores. सर्वभक्षी, ओमनी, सब या वोर या खाने वाला, ये वे जानवर हैं जो पौधों और अन्य जानवरों के मांस दोनों को खाते हैं, जैसे भालू, कौवा, कुत्ता, इंसान आदि. ये कुछ सर्वभक्षी जानवर हैं या सर्वव्यापी हैं. And next, scavengers and decomposers. Some carnivores and omnivores like vulture, crows, hyenas, etc. do not kill the animals. कुछ मांसाहारी और चरवाहारी जैसे गिद्ध, कौवे, लकड़बग्घे आदि अपने भोजन के लिए जानवरों को नहीं मारते हैं. They eat the flesh of other animals that are already dead. वे अन्य जानवरों का मांस खाते हैं जो पहले से ही मर चुके हैं. Animals that consume the flesh of dead animals are called scavengers. मृत पशुओं को या मृत पशुओं के मांस को सेवन करने वाले जानवरों को स्क्वेंजर्स कहा जाता है. See here, vulture, hyena, गिद्ध and लकड़बग्घा. This is a scavengers. Some other organized feed on and destroy dead plants and animals. कुछ अन्य जो मृत पौधों और जानवरों को खाते और नष्ट करते हैं. These organized are called decomposers. इन जीवों को decomposers कहा जाता है. Fungi and bacteria are examples of decomposers. कवक और बैक्टीरिया ये decomposers के उदाहरण हैं, यानी जीवाणु. Fungi and
bacteria. This is a decomposers, and both scavengers and decomposers play a very important role in nature. स्क्वेंजर्स और डिकम्पोजर्स दोनों ही प्रकृति में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. दे क्लीन आवर इन्वायरमेंट एंड कीप आवर सराउंडिंग क्लीन. वे हमारे पर्यावरण को साफ करते हैं और हमारे आसपास की को साफ रखते हैं. एंड नेक्स्ट टॉपिक, फूड चेन. फूड चेन मीन्स खाद्य श्रृंखला. Every organism needs energy to survive. प्रत्येक जीव को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है. Plants get energy from the sun to prepare food. भोजन तैयार करने के लिए पौधों को सूर्य से ऊर्जा मिलती है. Some animals get energy from the plants they eat, while some animals get energy by eating other animals. कुछ जानवरों को उनके द्वारा खाए गए पौधों से ऊर्जा मिलती है, जबकि कुछ जानवरों को अन्य जानवरों को खाने से ऊर्जा मिलती है. This chain of eating and being eaten is called a food chain. खाने और खाने की इस श्रृंखला को खाद्य श्रृंखला कहा जाता है. सो अ फूड चेन इज द सीक्वेंस ऑफ हु ईट होम इन अ पार्टिकुलर इन्वायरमेंट. तो एक खाद्य श्रृंखला वह क्रम है जो किसी विशेष वातावरण में किसे खाते हैं. All food chains start with producers like green plants. सभी खाद्य श्रृंखला उत्पादकों यानी हरे पौधों से शुरू होती है. यानी हरा पौधा एक विशेष भूमिका निभाता है, एक विशेष है. Thus, all animals are directly or indirectly depend on plants फॉर फूड. इस प्रकार सभी जानवर भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर निर्भर हैं, चाहे वो जानवरों को खाता हो या पौधों को खाता हो. Thus a simple food chain can be given us. इस प्रकार एक साधारण खाद्य श्रृंखला इस प्रकार दी जा सकती है. See here, producer plants यानी निर्माता क्या है, पौधा. प्राइमरी कंज्यूमर गोट यानी प्राथमिक उपभोक्ता बकरी. एंड नेक्स्ट सेकेंडरी कंज्यूमर ह्यूमन एंड लॉयन. माध्यमिक उपभोक्ता मानव या शेर. यानी पौधे को किसी जानवर ने खाया और इस जानवर को दूसरे जानवर ने खाया है. यानी घास को खाई बकरी, बकरी को शेर या मानव. Some more example of simple food chain in nature are grasshopper, rat, snake, eagle. यहाँ ये बताया जा रहा है कि घास को खाया ग्रासहोपर ने या ग्रासहोपर को रैट ने यानी चूहे ने, चूहे को सांप ने और सांप को ईगल ने. ये है इनका. एंड प्लांट्स माउस एंड आउल यानी पौधे को माउस चूहे ने खाया, चूहे को आउल ने. एंड नेक्स्ट वाटर प्लांट्स स्मॉल फिश एंड बिग फिश. वाटर प्लांट्स को यानी पानी वाले पौधे को छोटी मछली खाती है और छोटी मछली को बड़ी मछली खा जाती है. ओके स्टूडेंट, आई होप सो यू ऑल अंडरस्टूड दिस टॉपिक. food chain and also scavengers and decomposers and food habits of animals. I hope you all
Understood this topic? So you revise once again this topic. Okay.